करेंगे और हमारे डॉक्टर्स का भी बहुत बहुत थैंक्स करेंगे कि आज के इस समापन सत्र में वैलिडिटरी के इस अच्छे से हमारे सेशन में जो भी आज हमने पूरा किया है 2-2.5 दिनों में हमारे मध्य आप उसको सुनेंगे भी कि हमने क्या सीखा और आपकी ब्लेसिंग्स इंस्पिरेशंस हम आपसे भी लेना चाहेंगे। ओम शांति। तो हमारे मध्य डॉक्टर अशोक मेहता भाई, सचिन भाई और डॉक्टर मनोज भाई हमारे बीच में है। हम मिलते आए हैं, लेकिन अभी के इस सत्र में हमने क्या 2.5 दिन में सीखा है हम आपसे ही शेयरिंग लेना चाहेंगे। जब तक हमारे गेस्ट हमारे बीच में आते हैं तब तक हम चाहेंगे कि हमारे बीच में जो डॉक्टर्स हैं वो आपके एक्सपीरियंस जो आपने किया उसको सुने। तो ऐसा करते हैं दीदी, पहले तो हम बुलाना चाहेंगे, हमारे 4 ग्रुप्स थे, तो ग्रुप के नाम आपको याद है? ग्रुप के नाम आपको याद है? हाँ, यस, मुझे सुनाई नहीं दिया। केयरिंग हैंड्स और डिवाइन इनसाइट्स, अच्छा, और हैप्पी हार्ट्स और ब्लिसफुल माइंड्स। माइंड कैसा? ब्लिसफुल। तो पहले हम बुलाना चाहेंगे हमारी अर्चना बहन हैं जो कि डिवाइन इनसाइट ग्रुप की हैं, उनको बुलाना चाहेंगे वो शेयरिंग के लिए हमारे बीच में आए। शेयरिंग में स्पेसिफिक हमें ये बताना है कि हमने इससे क्या सीखा, हमें इससे क्या एक्सपीरियंस हुआ, वो आपको हमारे मध्य रखना है। Om Shanti to everyone. I'm Archana. I'm from Karnataka, Tumkur. It's 80 kilometers from Bangalore. And ORC, Om Shanti Retreat Center, I am coming for the second time. But the experience was very surreal and enchanting. Previously, I had come for only one day. I didn't understand the importance of this place. This is very nice and cooling place. See, we are stuck in the Bermuda Triangle. You people know Bermuda Triangle? It's a North Atlantic oceanic place where airplanes and ships get disappeared. So we were disappeared in the ocean of information in the cities, you know, big cities or small cities, every city. And this place is such peaceful, enchanted, surreal place. I am so glad I came here. Thanks to God Father. Coming back to the sessions, thanks to all the organizers, facilitators, and also congratulations to the participants who came here. The sessions were very engaging, entertaining, humorous at times. We were not given speech all the time. We were given exercises, activities to do ourselves and explore our innate qualities. These people taught us about positivity and cooperation. And these people themselves are the personalities of cooperation. Right from the entrance, they helped us how to reach here, then accommodating us to this place and serving us sattvic food in God's remembrance. Everything. And everyone, and one of the persons in serving here in this place is the personality of positivity and cooperation. I felt very entertained. Yesterday's entertainment, dance and games were very much fun. You people enjoyed, I think so.
I would like to come back here and I would present myself as a facilitator in future and help the other community people. Those people, I want to serve schools and colleges and many paramedical, pharmacists, etc. In small town people, they won't get access to such things because they don't know these people. I mean, such things exist actually. They are in remote places. They don't know anything about positivity or cooperation. They want to be heard and felt and experience these things. So I want to contribute that. Thanks, everyone. Thank you so much, Sister Archana. आपने बहुत सुंदर एक्सपीरियंस किया और ORC एक जैसे पीस की तरह आपके अंदर तक चला गया है. बिकॉज आज अगर देखें तो पीस भी पीसेस में हो गई है, पीस पीसेस में हो गई है. तो उस पीसेस को कलेक्ट करने के लिए हम पीस के लिए यहाँ पर परमात्मा के इस सानिध्य में आते हैं ताकि अपने अंदर भी उस शांति को हम महसूस करें. दिस इज ऑल्सो एन आर्ट. तो नाउ द सेकेंड वन इज सिस्टर मायरा from blissful group. Blissful group, I think it is a blissful minds. तो प्लीज आ जाएं सिस्टर मायरा. और सिस्टर मायरा के बाद केयरिंग हैंड्स तैयार रहेंगे, उसके बाद हमारे हैप्पी हार्ट्स तैयार रहेंगे. केयरिंग हैंड्स कहाँ पर बैठे हैं हमारे? जयंती बहन फ्रॉम केयरिंग हैंड्स. ओके, तो सिस्टर आप भी रेडी रहिएगा. सिस्टर मायरा ब्लिसफुल माइंड से ग्रुप से हमारे बीच में है. एक बार हम ताली बजा के सिस्टर का बहुत बहुत वेलकम भी करते हैं और दिल से थैंक यू भी करते हैं कि आप मन से हमारे पास इस पूरी ट्रेनिंग को आपने जो एक्सपीरियंस किया वो हमारे मध्य रखेंगे. Hello everyone, Om Shanti. I would like to start with a quote which is very close to me and which I have personally been believing in, which says, everything happens for a reason and nothing is a coincidence. So for me, coming here to ORC for Vihasa definitely was not a coincidence. There was a very big reason for coming here, and that reason was discovering myself, rather rediscovering myself. I would like to share my 3-day magical journey over here. Vihasa for me was like, जिसे कहते हैं ना कि an X-ray, I would say, कि it's a diagnostic tool. It was a beautiful diagnostic tool. Being a healer, I am a healer, we heal others, but in the long run, we forget ourselves. And when we get lost ourselves, we don't even realize that. So this was a very good moment to pause, self-reflect, and see how much I fell back in the journey of my own self-healing. Then next, best part was that usually we get diagnostic tools, but Vihasa was a complete package, I would say, because it was a therapeutic tool as well. हमें ये तो बता दिया जाता है कि हमारे अंदर क्या कमी है या क्या गलती है, but at the same time, how to fix it, that is an issue. So it was so complimenting, and I'm really grateful to wonderful facilitators that we have, Dr. Preeti and Dr. Prabha. They took us through a very beautiful journey of this self-realization. Our group had a beautiful chemistry. We were all very, very, very comfortable. And another very important personal learning which I had was regarding appreciation. We've all heard about Solomon Island, the island on which trees are never cut, but they are cursed. So while going through the activities, I realized that it's very easy to quote this example, but somewhere deep inside, we are all living on Solomon Island. We are all cursing each other, we are all cursing ourselves, and we are those living trees. Unknowingly, we have been harming ourselves and people around us. So those 4 steps of appreciation was a beautiful learning, and I'm taking that back as a special learning from here, and I'm definitely going to apply this. And as Sister said, definitely me too would like to be a part of the Vihasa team, and I have taken up this as a goal. Didi has suggested that you can start with small batches with whatever you have learned at your own centers. So I would like to visit the center nearby and be a part of it. Thank you so much.
which place? Thank you so much, sister, for your beautiful sharing with us, and our wish is always with you. So now the next one is, before we start the next, 1 minute एक अपने आजू बाजू में एक दूसरे को देख लीजिए just and give a beautiful smile to them and ask them आप कैसे हैं. ये भी एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है, राइट? हम सुन रहे हैं ना, अब हम थोड़े से रिलैक्स होके और उस चीज़ को लेकर आते हैं, बिकॉज जो अभी वाला ग्रुप आने वाला है दैट इज़ केयरिंग हैंड्स. तो उससे पहले हम एक बार केयरिंग हो जाए अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी. तो जयंती बहन से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सिस्टर जयंती बहन फ्रॉम केयरिंग हैंड्स, प्लीज आ जाए. जयती जयती. ओम शांति एवरीवन. वैसे तो मैंने आना नहीं था यहाँ पे, बाय चांस ही मेरा एक दिन पहले ही प्रोग्राम बना. भाई बहनों ने हमारे साथ जो आए हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि चलें, और फर्स्ट डे मेरा काफ़ी मिस भी हो गया. तो वैसे मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं लेक्चर मेथड में आके पीछे बैठ के सुनूं, और बोर मतलब होने का मन नहीं था, मस्ती का मन था मेरा कि कुछ दिन आउटिंग करी जाए और चेंज हो जाए. बट यहाँ पे आके जिस तरह की एक्टिविटीज़ थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं सोऊं भी रात को. मेरे को लग रहा था कि मैं जाग ही रहूं और 2-3 दिन बिना सोए बस घर चले जाएं अपने, और जितना हो सके बेनिफिट लें इसका. और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि मैं खुद टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, हम भी नॉलेज देते हैं और उनसे बच्चों से हम फैसिलिटेट करवाते हैं, निकलवाते हैं नॉलेज, लेकिन कहीं ना कहीं हमें रहता है हमारी मानी जाए, हम अपना ओपिनियन दें कि ये राइट है, तुम्हारा जो है वो तो है बट ये है. तो जो मैंने सीखा कि फैसिलिटेशन में 95% ऑफ द टाइम आपको अपना ब्रेन बंद रख के उन्हीं के बातों को निकलवाना है. मतलब इट हैज़ टू बी लिमिटेड टू देम. आप उसमें बीच में मत आओ, ग्रुप में से अपने आप निकलेगा. और जिस तरह से सबका पार्टिसिपेशन हुआ, सबके जो क्वालिटीज़ हैं उनको यूज़ करा गया. जो नहीं बोल रहे थे वो भी मुझे लगता है 3 दिन में, मतलब मैंने देखा कि फर्स्ट डे हम वैसा नहीं कर रहे थे जैसा हम लास्ट डे पे, लास्ट एक्टिविटी कितनी पॉलिश होके एकदम परफेक्ट होकर निकल कर आई. तो हर एक्टिविटी के साथ हम सीखते गए. और एक और चीज़ ये सीखी कि हमारा जो बोलना है, हम जो अपनी टेक्निकली राइट नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट, इतना मतलब पूरा इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस पॉस्चर में, किस कंपोजर में, किस एटीट्यूड से आप एक इवेंट को होस्ट कर रहे हो, क्योंकि दैट डिसाइड्स द एनर्जी ऑफ द रूम. तो जितना आपको अपनी इंस्ट्रक्शन क्लियर देनी है उतना ही आपको अपने उस पर ध्यान भी देना है कि उससे पहले और बाद आप बिल्कुल क्लीन होकर बैठो और पूरी तरह इन्वॉल्व हो. बहुत कुछ सभी ने सीखा है, तो थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा और मैं भी फिर से आना चाहूँगी और पार्ट भी लेना चाहूँगी, हर चीज़ में पार्ट लेना चाहूँगी. थैंक यू. कहाँ से है? दिल्ली. बिल्कुल सही है. थैंक यू जयती बहन, आपने बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हमारे बीच में रखा. और जो भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप अपना लोकेशन बताएंगे कहाँ से हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव भी जा रहा है. नेशनल विहासा का ये जो ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम है, ये पूरे नेशनल लेवल का प्रोग्राम है. तो अलग अलग जगह से हम सब आए हैं, और जब हम अपनी अपनी जगह पर जाएंगे तो डेफिनेटली हम इन चीज़ों को औरों के साथ भी बांटेंगे, पर सबसे पहले हम खुद के साथ उसको बांट भी रहे हैं और बांटेंगे भी. तो नाउ द फोर्थ वन इज हेमू जोशी फ्रॉम हैप्पी हार्ट्स. वो कहाँ है हमारे भाई? आ जाए. तो एक बार उनके लिए हम ताली बजाएं, हमारी भी एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है. बाकी तो डॉक्टर्स हमारे बीच में है, वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि ताली बजाना क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ओम शांति. तो मेरा नाम हेमू जोशी है और मैं दिल्ली रोहिणी से हूँ.
और मैं पहली बार यहाँ पे या कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल ग्रुप में मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम. और वो एक इंग्लिश में एक कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. सो ये बड़ी ही विचित्र बात है कि मेरे साथ वही हुआ, क्योंकि मेरा इधर आने का कोई प्लान नहीं था किसी भी तरीके का. और मैं 2 महीने पहले भी मुझे एक चांस मिला था. मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ब्रह्म कुमारीज में है प्रोग्राम है. मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, तो वो उन्हें उत्तराखंड से आना था, तो मैंने उनको मना कर दिया. और अब की बार वो फिर बोले मुझे कि आना है मुझे, तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपका ड्राइवर बन के चल लूँगा. तो अल्टीमेटली हुआ ये कि वो नहीं आए और मैं सिर्फ एज अ ड्राइवर ही आ गया. और हाँ, खुद को ही ड्राइव करके आ गया. तो मेरे से कोई कह रहा था यहाँ पे कि ये एक दैवीय योजना है, कोई हो सकता है बाबा ने चाहा होगा कि भाई मैं इधर आऊँ, तभी मैं आया इधर. तो ये शायद मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद में. सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जिस तरीके से ये प्रोग्राम डिज़ाइंड है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, और जो पूरा इसके पीछे जो हार्डवर्क गया है. हम लोग तो अभी खैर यहाँ पे सिर्फ अटेंड कर रहे हैं, बट जो हार्डवर्क इसके पीछे गया होगा, जो मॉड्यूल्स को डिज़ाइन करना और उसके बाद उसको पूरा इम्प्लीमेंट करना, इट्स आई मीन इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्पेशली एन अप्रिसिएशन फॉर देम. तो क्लैपिंग सबके लिए. अब जहाँ तक की बात है कि मुझे कैसा लगा इधर आके, या जो हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे ग्रुप के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, तो हमारा ग्रुप बहुत ही एक्टिव ग्रुप था. शुरू में ऐसा, क्योंकि लोग धीरे धीरे आ रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे, तो एक कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा कम था. बट जैसे ही हम लोग एक पूरा ग्रुप बन गया, होमोजिनिटी आ गई ग्रुप में, उसके बाद में काफ़ी अच्छा लगा. सब लोग पार्टिसिपेट करने लगे और काफ़ी खुल गए एक दूसरे के साथ में. सो ये अगेन हमारे जो फैसिलिटेटर थे डॉक्टर सचिन और सोनिका दीदी, उनका कमाल था कि उन्होंने किस तरीके से हमें एक फैमिली की तरह पूरा बना के रखा. डॉक्टर सचिन खास तौर पे जो उनका ह्यूमर एंगल है, उससे हम लोगों का काफ़ी ओपन हुए हम लोग, और उसकी वजह से हमें कभी लगा ही नहीं कि हम कुछ सीख रहे हैं. और करते करते एक्टिविटीज़ को करते करते ही इतना कुछ सीख गए कि आज ये लग रहा है कि हाँ, वी आर अ वेरी चेंज्ड पर्सनालिटी. हालांकि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो अभी मैं 2 दिन का बच्चा हूँ इस ग्रुप में या स्पिरिचुअलिटी में, बट स्टिल मेरे को ऐसा लग रहा है. तो जो लोग इतने सालों से कर रहे हैं, वो उनके पीछे आई कैन अंडरस्टैंड कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, क्या क्या वैल्यूज़ इम्बाइब हो गई होंगी इस प्रोग्राम से या ऐसे प्रोग्राम से. सो रियली हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल हु हैव डिज़ाइंड दिस प्रोग्राम. और मैं तो ये चाहूँगा कि मैं किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, चाहे वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के थ्रू हो, उनके पास जाना हो, या आपके साथ में एज अ फैसिलिटेटर हेल्प करना हो कहीं पे. हो सकता है मैं अभी तो अपने लेवल पे कंप्लीट फैसिलिटेशन तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो जो मेरे को काम दिया जाएगा मैं ज़रूर उसको करूँगा. और सबसे पहले जाते ही मैं अपने घर के पास जो मेरा सेंटर है ब्रह्म कुमारीज का, वो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा. वहाँ पे मैं 7 दिन का एक कोर्स करूँगा. और मेरे को अपने स्टूडेंट में से एक स्पिरिचुअल गुरु मैंने बना ली हैं अपनी, जो मेरे रोहिणी में ही रहती हैं, पिंकी दीदी. तो इनसे मैं ज़रूर बात करता रहूँगा, और इसको मेरे को आई एम श्योर कि शी विल हेल्प मी, और बाकी भी लोग मुझे हेल्प करेंगे. थैंक यू. बहुत सुंदर ब्रदर. आप सबके चेहरे की स्माइल से पता चल रहा है कि जैसे ही कोई कहता है ना हम मेडिटेशन सेंटर पे जाके सीखेंगे, तो आपको कैसा लगता है? तो ताली भी नहीं बजाते. हाँ, इतना अच्छा लगता है ना. और परमात्मा का ज्ञान ही ऐसा है कि जो वैल्यूज़ हमारे अंदर आती हैं, लेकिन जब परमात्मा का प्यार समझ में आता है तो वैल्यूज़ को करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक अपने अंदर एक दिखाई देने लगता है. तो लास्ट अजीत भाई को बुलाना चाहेंगे. अजीत भाई, आप आए. आप कोई विहासा की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर नहीं आए थे, बट प्रोग्राम चल रहा था, तो आप आदरणीय आशा दीदी से मिले. आप लोकसभा में डिप्टी सेक्रेटरी हैं और वहाँ पर आप कार्यरत हैं. किसी कारण से यहाँ आना हुआ कोर्स करने के लिए, लेकिन विहासा की ये ट्रेनिंग चल रही थी. आपको इतना अच्छा लगा कि आप परसों से आके, आज आपको अभी भी जाना था लेकिन आप अब तक भी नहीं गए हैं. आपका कोई प्रोग्राम है आज,
वो अभी थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा इफ़ेक्ट होता है कि अपने अंदर से वो चीज़, जब हम इतने पीसफुल वातावरण में होते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी हमें भी क्या करती है, हेल्प करती है उसको ग्रो करने में। तो मैं अजीत भाई को कहूँगी एक बार जोरदार हम ताली बजाएं। बहुत बहुत थैंक यू जी। नमस्कार सभी को। एक्चुअली इनफैक्ट जस्ट 2 मिनट पहले मैं कार में ही बैठा था, तो मेरे ऑफिस से कॉल आया कि वो मीटिंग अभी पोस्टपोन्ड है, तो आई केम बैक रनिंग हियर। और जैसे पहले तो बताऊंगा कि राहुल भाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ही हैज़ बीन टेलिंग मी टू कम हियर सिंस लास्ट 10 years। हम लोग मिलते रहते हैं, बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं वगैरह वगैरह। ही से कि यहाँ आते हैं, मैंने कभी नहीं आया, कभी वैसे बना ही नहीं। इस बार भी उन्होंने फॉर्म भरवाया, उन्होंने ही बोला कि ये भरा कि नहीं भरा वो भी चेक करा। फिर ही केम फ्रॉम आगरा, उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ आगरा से, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो बताओ। तो मैं इनफैक्ट घर में थर्सडे को ही बताया कि मैं जा रहा हूँ, उससे पहले मैं श्योर नहीं था कि मैं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। इट इज़ लाइक दिस। बट अगेन कल जो रात को बातचीत हमारी हो रही थी तो यही वो बोल रहे थे कि सपोज आप ये सोचो कि आप इस तरह की प्रोग्राम 10 साल पहले करते तो क्या होता है। जब ऐसे इस एंगल से सोचते हैं तो फिर समझ में आता है कि व्हाट आई मिस्ड, और कैसे ये क्या चेंजेस हमारे अंदर ला सकता था। जिस मोमेंट से मैं यहाँ पे अंदर आया तो जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन देखा यहाँ पे जिस तरह का, जस्ट मतलब जो फर्स्ट इम्प्रेशन था, आई वॉज कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे कहीं पे ऐसे नहीं लगा कि मैं कहीं बाहर की जगह आया हूँ। एक अपनी फैमिली फट से, मैं किसी से भी कहीं पे भी खाने के लिए जाओ या कहीं पे घूमो, ये करो, किसी से भी मिलो, कुछ से भी करो, कभी भी ये चीज़ फील नहीं हुआ। लगा कि हाँ जी कहीं पे मैं अपने घर पे आया हूँ और आके आराम से अपना काम करके जाना है। दिस वॉज द फीलिंग, फर्स्ट फीलिंग हियर। एंड एवरीथिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड। बहुत सारे जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बन जाते हैं, बहुत आराम से बन जाते हैं, लेकिन आपको ऑर्गेनाइज करके रखना एंड एवरीथिंग फंक्शनल करके रखना। तो टैप है तो टैप काम करना चाहिए, पानी निकलना चाहिए, दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ये चीज़ मैंने देखा बहुत अच्छे से कि हर जगह इट इज़ फंक्शनल, दिस सिस्टम इज़ रनिंग एंड रनिंग स्मूथली। तो जो पीछे इसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी लोग इसमें पे काम करते हैं, वो सराहनीय है। और एक्चुअली इससे पहले मैं 3 साल के लिए ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में काम किया था। इट इज़ ए फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे डिज़ाइन थिंकिंग पढ़ाया जाता है। तो जो वो एक मैंने वहाँ पे बहुत सारा प्रोजेक्ट भी करा, तो वो प्रोजेक्ट में हम लोग डिज़ाइन के प्रोजेक्ट करते थे। डिज़ाइन थिंकिंग थोड़ा सा अलग रहता है। वो डिज़ाइन थिंकिंग हमेशा एक अप्रोच रहा अपना, तो उस एंगल से भी मैं इस कोर्स को स्टडी कर रहा था थ्रू आउट दिस 2 थिंग्स। 2-3 चीज़ें बताऊँगा बस। पहला चीज़ तो मैंने ये देखा कि जैसे ये जो कोर्स है ब्रीफ था, बट जैसे वो कहते हैं मतलब पावर पंच वाला था पूरा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको माइंड को कोई रेस्ट हो रहा है, मतलब आपको मिल रहा है, बहुत सारा चीज़ें मिल रहा है, इसको कंटिन्यूस प्रोसेसिंग के लिए टाइम मिल रहा है, फिर फ्रेश चीज़ें मिल रहा है, फिर मतलब इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। और वो प्रोसेस भी ऐसा नहीं है कि जैसे सुपरफिशियल प्रोसेस है कि आप ऊपर से कर लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल अप्रोच है ना, वो आपको अंदर से चीज़ों को निकालने की, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो टूल्स हैं वो अंदर से हमारी जो बातों को निकाल लेता है, और जो अंदर से जो हमारी हिडन सिस्टम है उसको वो बाहर लाने की कोशिश करता है। और दूसरे मैनेजमेंट की सिमिलर टाइप के कोर्सेज मैंने किए, बट हियर दिस वाज द डिफरेंट अप्रोच, जहाँ पे हम अंदर से जाके खुद की अंदर से हम झांकते हैं, खुद की अंदर से वो सिस्टम निकल के आता है, और दैट इज़ जो इसको सेपरेट कर देता है। बिगिनिंग में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था कि ये हेल्थ प्रोफेशनल के लिए है तो कैसे होगा, ये सही सब अदर्स के लिए है या कैसा है, बट व्हाट आई सी हियर वट एवर बी द नेम, बट उसके हिसाब से ये नहीं है। सारे ऑफिस में कहीं पे हम काम करते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं, वो कंसल्टेंसी हो या रेगुलर वर्क हो, वो ये उसमें फिट बैठता है। बिकॉज हम इस तरह की प्रोसेस में जाते हैं, इस तरह की जिस तरह की हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ये उसको डील करता है अगर वर्क स्फीयर में देखा जाए तो। पर्सनली और एक बात मैं बताऊंगा कि जैसे फैसिलिटेटर्स, मतलब इट्स स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस। प्रीति मैडम, प्रीति दीदी, प्रभा दीदी, वो थोड़ा मैडम वाला हमारा हैबिट है ऑफिस में बोलने का, तो
दे वेर एक्चुअली वंडरफुल। मेरे को पता नहीं था कि मतलब इतने स्मूथली चीज़ें करा जा सकता है, इतने स्मूथली एक ट्रस्टिंग एटमॉस्फेयर बन जाए, फट से सब लोग जेल हो जाएं और इतना बहुत आराम से, कहीं पता भी नहीं चला कि हम लोग मतलब ऐसे प्रोसेस में जा रहे हैं। और इनफैक्ट कल जो 8 घंटे का था पता भी नहीं चला कि 8 घंटा मतलब हो गया पूरा, ये हो गया। मतलब वहाँ पे इतना सब होने के बाद फिर रात को हम लोग घूमे, फिर बात हुई, पर बहुत सारी चीज़ें हुआ, मतलब कभी फील नहीं हुआ इस तरह का एग्जॉशन। अब ऑफिस में 8 घंटा बैठना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब देखते हैं कि 6 बजे से पहले 15 मिनट पहले तैयारी शुरू कर देते हैं कि जाना है, कैसे होना, पहले तैयार होके जाएं तो फिर फटाफट बायोमेट्रिक लगाए घर चले जाएं। तो यहाँ पे दैट फीलिंग वाज नॉट देयर। सो ऑल क्रेडिट गोज टू फैसिलिटेटर्स हियर, दे आर वेल ट्रेन्ड, बहुत अच्छा से मतलब रिफाइंड, एक्सपीरियंस्ड। और सेम थिंग ग्रुप में भी वही मुझे मिला। ग्रुप में बहुत तरह की वेराइटी के लोग थे और हम कंटिन्यूसली ग्रुप को एक्सचेंज कर रहे थे, तो उसमें अलग अलग तरीके के लोगों की, और सब ने अपनी दिल खोल के सब बातें बताई। सब ने ऐसे भी भाई थे जो पहले दिन पहली टाइम उसी समय हमारे साथ आए, उसी समय हमने ग्रुप बनाया, उसी समय ही हमने एक स्किट बनाया उसमें और करा। देवेश भाई हैं सेम से उसी समय वो एंट्री करे उस ग्रुप में, एंड ही केम टू अस इन आवर ग्रुप। सो इट हैपेंड लाइक दैट। सो उस सेंस में बहुत ही बढ़िया था। और जो ठीक रखूँ, ओके, अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा हूँ शायद, तो ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, इट वाज रियली गुड। एंड एक चीज़ छोटा सा, जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला है, देयर इट हैज़ टू बी सिस्टमैटिक। जैसे हमने 3 मॉड्यूल्स करा, तो देयर शुड बी अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गो फॉर द नेक्स्ट मॉड्यूल्स ऑल्सो। आप कैसे इसको करेंगे थोड़ा सा सोचिए। बेटर होगा कि अगर वीकेंड में हो, या जैसे वीकेंड के साथ एक दिन मिला के हो, तो हम लोगों के लिए होगा। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ से, बहुत सारे लोग आएंगे। सो इफ दैट कैन बी डन, इट विल बी वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू अजीत भाई, आप जीत गए। हाँ, अपने उसके ऊपर आपने मन को मना लिया। कल रात को वो कहते दीदी ये बताओ मॉर्निंग में कि आगे के मॉड्यूल्स का कब हो रहा है। मैंने कहा अभी हमको करेंगे। तो अपना ये नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल हो गया है, क्योंकि हमारे पास यूएस से भी ब्रदर बैठे हैं, आए हुए थे वो इंडिया में, तो यहाँ पर आए हैं, जिनके लिए वो कह रहे हैं लास्ट में पहुँचे हैं। लेकिन यही है कि किस तरह से हम अपने आप को इम्बाइब करें, तो ये अच्छा ही रहता है। तो अभी हम डॉक्टर रूप सिंह भाई, जिनका नाम बहुत अच्छा है, तालीराम, बहुत सुंदर तालियों से, और हम चाहेंगे कि आज एक ताली आप अच्छे से समझाई दीजिएगा। और तो और हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और बहुत सारी बुक्स लिखी है, और अगर बताएं तो बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल स्पीकर है। कॉरपोरेट्स के प्रोग्राम्स, हमारे यहाँ पे जब भी प्रोग्राम्स होते हैं कॉरपोरेट के या ओल्ड पीपल होते हैं, उनको हम गोल्ड कहते हैं, तो जब भी सीनियर सिटीजन्स के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आपको खास बुलाते हैं, और आप एक कॉल पर ही हमारे पास पहुँच जाते हैं। आप अपना हॉस्पिटल है उसको रन करते हैं। बाकी तो आशा दीदी ने उस दिन भी इंट्रोड्यूस कराया था। तो डॉक्टर रूप सिंह भाई का हम अपने अंदाज की ताली से वेलकम करते हैं, थैंक यू करते हैं। आपको अभी किसी काम के लिए थोड़ा जाना है तो आपको भी कहेंगे आप अपना एक्सपीरियंस कर सुनाएं, या जो भी आपने देखा आप कर रहे थे। पूरा ORC कह रहा था अरे डॉक्टर रूप सिंह भाई भी कर रहे हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू बाबा। ये जो डाइस पर बैठे हैं ना, ये मॉड्यूल ही हैं। नाइन्टी ईयर्स की एज में डॉक्टर मेहता भाई इज लाइक ए ब्लिसफुल माइंड। डॉक्टर परब भाई केयरिंग हार्ट, डॉक्टर मनोज भाई केयरिंग हैंड्स, और दीदियों का तो कहना ही कहाँ। जैसे सेक्रेटरी भाई कह रहे थे ना, 10 साल पहले क्यों नहीं आ गए। जो सौभाग्यशाली होते हैं वही आ पाते हैं। निमंत्रण तो हजारों को होगा। जब ये वैल्यूज इन हेल्थ केयर की बात हो रही थी तो मेरे सामने चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री, आशा दीदी आ गए हैं। वेलकम दीदी। हम सभी खड़े होकर दीदी का स्वागत करें और ताली बजाते हुए भी स्वागत करें।
Thank you so much, Didi. Welcome, Didi. Thank you, Baba. So the best thing I liked कि अशोक भाई ने प्रपोज किया कि दीदी ORC can become National Institute of Vyasa. अभी तो पेड़ की छांव के नीचे वालों को पता नहीं है. सेक्रेटरी साहब कह रहे थे लोकसभा वालों को पता ही नहीं है कि यहाँ इतना मानसरोवर पद्म सरोवर रहता है. We were basically trained for healing. हमारा पूरा चिकित्सा समुदाय हीलिंग के लिए ट्रेंड किया गया था. 10-10 साल की एजुकेशन पाके, लेकिन प्रैक्टिकली हम केवल केमिकल इंड्यूस करने के काम में और सर्जिकल एम्प्यूटेशन करने के काम में लग गए. और सडनली वी आर बीइंग गाइडेड बाय द फार्मासिस्ट, बाय द इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री, एंड वी लेफ्ट द पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग गॉन. बड़ा अच्छा लग रहा था कोविड के दौरान में. हेलीकॉप्टरों से फूल बरस रहे थे, हम पे थाली बजा रहे थे, लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, सोशल संगठन आके फूल दे रहे थे. पता लगा डॉक्टर की जीवनी बढ़ रही है ताकि वो और कोविड में सेवा कर सके. दैट वाज द वैल्यू ऑफ एप्रिशिएशन. थैंक यू. यू इनकलकेट इन योर सिलेबस. पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने रियलाइज किया एप्रिशिएशन में बहुत पावर होती है. परंतु किसी दवा इंडस्ट्री ने नहीं कहा कि ये एप्रिशिएशन की गोली खा लो. ब्रह्मा कुमारी ने कहा, थ्रू व्यासा कहा कि एप्रिशिएशन इज बेटर देन मेडिसिन. 30-40 साल की प्रैक्टिस में ऐसा अभिमान हो जाता है, मैं डॉक्टर हूं, मुझे बहुत आता है. लेकिन जब कोई मरीज कहता है, अपनी स्थानीय भाषा में कहता है, मेरा दिल गुड़गुड़ाहट हो रहा है, बैठा जा रहा है. अच्छा खासा दोनों हाथ पैरों वाला व्यक्ति कहता है, मैं टूटा पड़ा हूं. तो मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं है, और सारे जवाब मुझे ही देने हैं. ये जरूरत भी व्यासा के कोर्स ने पूरी कर दी. उन्होंने कहा, भाई साहब अभी तो आपके अंदर समंदर है, थोड़ा सा डाइव डीप करिए, बल्कि अपना परिचय भी ऐसे ही करिए. तो जो और सीखने का, और आप अपने अंदर जाके और क्वालिटीज को, और वैल्यूज को, और क्रिएटिविटी को बाहर लाने का ये मौका प्रोवाइड किया, ये सच में ऐसे गॉडली प्लेस पे ही हो सकता है. दुनिया कहती है हम ब्लीडिंग रोक देते होंगे, लेकिन अगर 100 में से 70 डॉक्टरों को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सर्वे है, आप आस्क करेंगे कि आपका क्या हाल है, बोला ब्लीडिंग इनसाइड. द हीलर इज ब्लीडिंग इनसाइड because of the Consumer Act, because of the law and condition, because of the infrastructure. We have 50 lakh of the doctors, but we have hardly 50 doctors who heal the doctors, the healers. But Vyasa has done it, so I appreciate them, I am salute them. Lucky enough to learn the art of listening. बहुत कुछ सुनने को मिला. Lucky enough to give time to yourself. I was under heavy pressure. ये काम है, वैसे ही काम है, इतना काम है, उतना काम है. तो भी ऐसा से सीखने को मिला, अपनी कदर करो, ये भी एक काम है. अपने लिए टाइम दो, ये भी एक काम है. So with these qualities, I really thank you. I wish, I pray that Asha Didi will approve this plan of National Institute of Vyasa. Thank you so much. Om Shanti. थैंक यू रूप सिंह भाई, बहुत अच्छा. कितनी डिटेल में आपने, क्योंकि खुद आप उस प्रोफेशन में हैं तो आपने उसको अच्छे से बताया. और इन द लास्ट आपने कहा दिस इज द आर्ट, जो उन्होंने आर्ट ऑफ लिसनिंग को हाईलाइट किया. तो व्हाट इज द आर्ट? ए अवेयरनेस, आर रियलाइजेशन. और विहासा उस चीज को धीरे धीरे करते करते, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस इज द आर्ट.
जो परमात्मा की याद से और इस विहासा के इस मॉड्यूल से हम बहुत इजीली समझते हैं, पर जो आपने कहा कि जब हम मेडिटेशन को सीखते हैं, राजयोगा मेडिटेशन को मेडिटेशन सेंटर्स पे जाकर सीखते हैं, तो वो आर्ट भी हमारे अंदर इम्बाइब करने लगती है। तो थैंक यू सो मच। और हमारे मध्य आशा दीदी भी पहुंच गए हैं, तो हम दीदी के लिए भी बहुत बहुत प्यार से हम ताली बजा के दीदी का भी थैंक यू भी करते हैं। और साथ में, क्योंकि ये सहयोग जब बड़ों से मिलता है तो हम उसको और आगे इन लार्ज लेवल पे कर पाते हैं। कल जब हम डीप ब्रीफिंग कर रहे थे, साथ में डॉक्टर्स के साथ बैठे थे, तो यही बात हो रही थी कि कैसे हम इसको वास्ट लेवल पे, आउटरीच लेवल पे इसको करें। तो वो होता है जब खुद से हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो हमारे बीच में हमारी बहनें हैं, मैं बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स, जो भी स्टेज पे गेस्ट बैठे हैं, उनको बैचेस से और प्लांट से वेलकम भी करें और थैंक यू भी करें। सो आपको क्या हुआ? बैच हमें मिला, बुके हमें मिला, आपको क्या मिला? आपको प्यार मिला ना, बहुत सारा, है ना? तो एक बार खड़े हो जाएं उसी प्यार में। हाँ, कैरिंग हैंड्स में कैसे करते हैं? हाँ, दोनों हाथों को सामने लेकर आए। हाँ, अपने हाथों को बोले थैंक यू, आप हमें यहाँ पर लेकर भी आए और हमने इन हाथों से बहुत प्यारा प्यारा क्या किया, सब एक्टिविटीज की, सबको किया। और अपने साथियों को देखो, हाँ, और उनको हाथ हैंडशेक करते हुए से टू देम थैंक यू, आपने हमको उन एक्टिविटीज में सहयोग दिया। ठीक है, ऐसे ही हम अपने आप को एनर्जाइज फुल टाइम रखें। तो अभी बैठ जाए। थैंक यू सो मच। अब अपने लिए ताली बजा लीजिए एक बार अच्छे से, अपने को पैड ऑन कर लीजिए, शाबाश। अप्रिशिएट अदर्स तो हमने किया, बट अप्रिशिएट आवरसेल्व्स। तो अभी आदरणीय आशा दीदी से हम भी सुनेंगे। दीदी ने भी हमारे सारे प्रोग्राम को सुना भी, कल अच्छे से हमारा डिस्कशन भी हुआ, उसमें बहुत अच्छे से हमने सब कुछ, डॉक्टर्स ने उनको एक्सप्लेन भी किया कि क्या क्या हमने मॉड्यूल्स में किया। तो अभी आदरणीय दीदी से ही हम सुनते हैं कि दीदी हम आगे इसको कैसे और लेकर जाएं। आपकी ब्लेसिंग्स इस विहासा प्रोजेक्ट को ही नहीं, लेकिन हर इंडिविजुअल को मिलती है जब आप मॉर्निंग में परमात्मा की बहुत सुंदर स्पिरिचुअल टीचिंग्स को हमारे बीच में पढ़ते हैं, जिसके लिए दीदी का फेमस भी है कि बाबा की मुरली जो हम जन जन तक फैलती है, और वो बाबा की मुरली मॉर्निंग में बहुत प्यार से आप उसको हमारे मध्य रखते हैं। तो ऐसे आदरणीय आशा दीदी जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ हम जैसी टीचर्स बहनें जो आज आपके मध्य हैं, उनके ट्रेनर भी हैं। नेशनल लेवल पे हमारी बहुत सारी टीचर्स हैं जिनको दीदी ट्रेन करते हैं। और तो और जो हमारा आईटी विंग है, एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, उसके आप चेयरपर्सन भी हैं। तो आदरणीय दीदी से मैं कहूँगी, दीदी आप अपनी ब्लेसिंग्स हमको दें। ओम शांति। मुझे यज्ञ याद आ रहा है। आदि में जब 350 भाई बहन इकट्ठे रहते थे, तो कोई जब बीमार होते थे तो बाबा ने
एक नर्स फिक्स की हुई थी, वो थी हमारी दादी जान की। आप लोगों को पता है ये बात? नहीं पता? दादी जान की नर्स थी और उनके साथ दादी रुक्मणी थी। तो दादी जान की नर्स का कार्य बहुत अच्छी तरह भली भांति निभाती थी। तभी शायद विहासा जानकी फाउंडेशन के अंतर्गत है। जो चीज दादी करती थी वो था, जो दवा देनी है वो तो देती थी, लेकिन उसके साथ साथ उन आत्माओं को बाबा की स्मृति और बाबा में फेथ ये बिठाती थी। फेथ ऐसा कि जो दवा मिली है और जो मुझे परहेज रखने को कहा गया है वो किसने दिया है, किसने दिया है। अगर ये फेथ होता है तो वो दवा काम भी करती है। फेथ नहीं होता तो दवा कितनी अच्छी हो काम नहीं करेगी। तो आपके इसमें फेथ है या नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन फेथ एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि व्यक्ति को ठीक कर देता है। एक मिसाल मैं आपको बताऊंगी। बेगरी पार्ट था और बेगरी पार्ट में सबको आधी ज्वार की रोटी और एक लस्सी का ग्लास मिलता था। कुछ बहनों को डिसेंट्री हुई तो औषधि के रूप से बाबा ने कहा यही चीज बच्चों को खिलानी है। तो 4-5 महीने थी, उसमें से कुछ ने तो कहा जो बाबा ने कहा वो हम करेंगे, और कोई ऐसी भी थी जिन्होंने कहा हमने मरना थोड़ी है। तो उन्होंने वो नहीं लिया, तो बाबा ने उनको वो चीज़ प्रोवाइड कराई, अनार होता है वो चीज़ प्रोवाइड कराई जो उनके लिए आवश्यक थी। नतीजा ये हुआ, हमारी शील दादी जो बॉम्बे में रहते थे, बाबा उनको गवर्नर कहते थे। तो शील दादी, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, लेकिन उसने बाबा की बात को मान करके किया, वो तो ठीक हो गए। बाकी जो दूसरे थी उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा। फेथ, फेथ, खुद में भी फेथ हो। आज सवेरे की मुरली भी पर चांस हुई थी। खुद में भी फेथ हो, ऊपर वाले में भी फेथ हो, और जो हमारे साथ सेवा में रहते हैं उन पर भी फेथ हो। कई बार हम लोग जो सामने होते हैं, हम कहते हैं हमें ये व्यक्ति नहीं चाहिए। अगर फेथ होता है तो व्यक्ति बेचारा वो अच्छा साबित सिद्ध हो जाता है। तो फेथ एक चीज है जो मैं चाहूंगी कि आप सब अपने आप में और बाबा में फेथ रख करके जब इसको आगे प्रमोट करेंगे, आगे किसी को देंगे, तो वो भी उस फेथ से एक्सेप्ट करेगा और उस फेथ से वो इस चीज को अप्लाई करेगा। और जहाँ वैल्यूज हैं, जहाँ पर अच्छाइयाँ हैं, हमदर्दी है। हमदर्दी बहुत बड़ी चीज है। जहाँ हमदर्दी है
जहाँ करुणा है, जहाँ आप आत्मा को कहते हैं कि भाई ठीक है आप बोलो जो आप कहना चाहते, अगर हम उसको कहें नहीं नहीं आपने बोल दिया ना मैं समझ गया हूं, तो वो सोचता है कि मेरी पूरी बीमारी तो मैंने बताई नहीं। डॉक्टर तो डॉक्टर है, डॉक्टर तो सेकंड में पहचान लेता है, लेकिन पेशेंट की संतुष्टि होना ये भी बहुत जरूरी होता है। अगर पेशेंट संतुष्ट नहीं है और उसके जो साथ में सेवा पर उपस्थित हैं वो संतुष्ट नहीं है, वो वाइब्रेशन भी उसको जाते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप लोगों ने ये जो सीखा है इसको इम्प्लीमेंट भी करिए। कम से कम कुछ एक स्थानों पर इसकी प्रेजेंटेशन दें, लोगों को कराएं, तो जो आपने सीखा है आगे जब आप इसको देते हैं और उसके स्वरूप बन करके देते हैं, अनुभवी बन करके देते हैं, तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। आप लोग बड़े अच्छे अच्छे टाइटल बोल रहे हो, मेरा तो दिल बहुत खुश हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट नो, वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस तो ऑलरेडी है ये। ORC is already Center of Excellence. National School of Vihasa. National Institute of Vihasa. Indian Institute of Values. ठीक। तो आप लोगों ने एक बात कही है, मुझे भी अच्छी लग रही है, क्योंकि बाबा ने जब ORC बना था तो बाबा ने वैल्यूज की बात कही थी। 4 बातें कही थी, एक एजुकेशन, एक इंडस्ट्री, एक यूथ और एक ब्राह्मण। और उसमें बाबा ने कहा था वैल्यूज की एजुकेशन दे, वैल्यू एजुकेशन। तो अवश्य इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। आप अपना जो नाम है वो फाइनल करके 2 नाम बता दीजिए, तो फिर बड़ों से पूछा जाएगा और उसके बाद इसको आगे हम फिर पब्लिसाइज। लेकिन फिर मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। आपका स्कूल खाली नहीं रहना चाहिए। फिर ये बात है, इंस्टीट्यूट खाली नहीं रहना चाहिए। या तो आप डिक्लेयर करेंगे साल में 1 कोर्स होगा या 2 कोर्स होंगे, वॉट एवर इट इज। आपको बेशक ORC में करिए, परंतु आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू सी द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो देयर, दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है। और जो हमारे नेबरिंग एरियाज हैं उन पर भी हमारी रीच होनी चाहिए। जैसे रेवाड़ी है, आपका बावल है, भिवाड़ी है, सोना है, फारूक नगर है, नूह है, इसमें भी हमारी रीच होनी चाहिए। ठीक है। तो आप सब ठीक हैं? ओके। सो यू आर एम्पावर्ड, एम्पावर्ड। अच्छे खुशी खुशी जो चीज़ की है उन खुशियों को आगे पास ऑन करते रहे। व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश कब होता है? देखे, और जब उसकी बात सुन ली जाती है ना, उसकी बात सुन ली जाती है तो खुश हो जाता है। देने में खुशी है, नो डाउट, लेकिन सुनना ये भी जरूरी। ठीक है। और कुछ कहना चाहते सुनैना बहन जी? हाँ, हमने आपकी बात सुनी। आपने वो एक्सरसाइज कराई है इनको 3 सर्कल वाली? आप लोगों ने कराई, नहीं कराई?
की होगी कईयों ने। मैं वो एक्सरसाइज कराती हूँ ज़्यादातर। एक सर्कल ड्रॉ करिए, इमेजिनरी सर्कल, उसमें आप उसका नाम लिखिए जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है? अब दूसरा सर्कल ड्रॉ करिए जिसको आप सेकंड मोस्ट प्यार करते हैं, उसका नाम लिखिए जिसको आप सेकंड मोस्ट प्यार करते हैं। कर लिया? भाई भी कर रहे हैं। अब आप तीसरा सर्कल ड्रॉ करिए, उसमें उसका नाम जिसको थर्ड मोस्ट करते हैं। हो गया? जिन्होंने ये एक्सरसाइज पहले की हुई है वो हाथ खड़े करो। आप लोग नहीं बोलिएगा। कोई शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहला नाम किसका? किसका? शिव बाबा। शिव बाबा। सेकंड ब्रह्मा बाबा। लौकिक माता जी। लौकिक माँ। भाई 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 का। फादर। फर्स्ट इज शिव बाबा, सेकंड इज फादर, लौकिक फादर। थर्ड हस्बैंड। हस्बैंड्स। भाइयों में बताएगा कोई? अच्छा, सब राइट है। किसी ने अपना नाम लिखा फर्स्ट सर्कल में? ठीक है। अपना नाम, अगर आपको अपने से प्यार होगा तो आपको सबसे प्यार होगा, बाबा से भी प्यार होगा, परिवार से भी प्यार होगा। अपने से प्यार होगा तो हम अपने आप को हर तरीके से ठीक रखेंगे, और अगर अपने से नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो अपने से प्यार रखना है। मंजूर? मंजूर? अपने से। ओके, बस अपने से प्यार करो तो विहासा सक्सेसफुल है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स कहें या हमारे लिए शिक्षाएं कहें या और जो हम बातें अपने ध्यान पे रखें, उन सब चीज़ों को आपने हमारे साथ रखा। और हमारा भी ये विश्वास है कि हम भी जो दीदी ने कहा है उसको ज़रूर अपनी लाइफ में इम्बाइब भी करेंगे और करते जाएंगे। और हम आदरणीय आशा दीदी को अभी निकलना है, तो हम पहले सर्टिफिकेट्स दीदी के हाथ से लेते हैं। आप सब आते जाएंगे और अभी आप सभी बैठेंगे क्योंकि सचिन भाई ने आप सबके साथ मिलना है। आगे के कुछ प्रोग्राम्स क्या प्लान करेंगे, क्या एक्शन प्लान है, वो आपके साथ वो रखेंगे। रखना अभी है लेकिन दीदी को जाना है तो उसके बाद। तो आप सभी सर्टिफिकेट लेके हॉल में ही बैठेंगे। केयरिंग हैंड्स के जो ग्रुप है वो रेडी रहेगा। मनीबा दत्ता नाम लेते जा रहे हैं। मनीबा दत्ता, डॉक्टर मीलू राजपूत, कोमल, प्रतिभा, आप सारा ही ग्रुप आ जाए ना तो उसमें भी होगा। सीक्वेंस में ही आएंगे। मनीबा बहन, मनीबा बहन पहले आएंगे, जाएंगे। सो दीदी का भी बहुत बहुत थैंक्स। एक हाथ की ताली से हम सभी दीदी का बहुत बहुत थैंक्स करेंगे क्योंकि आप ये एनर्जी देते रहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे चलते रहें और हम परमात्मा से शक्ति लेते रहें। तो मनीबा दत्ता, डॉक्टर मीलू, उसके बाद कोमल आ जाइए, प्रतिभा, डॉक्टर रूप सिंह,
बीके अर्चना, डॉक्टर रूप सिंह भाई, डॉक्टर अर्चना, मालिका, मालिका, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर अर्चना, और उसके बाद मालिका, जयती, जयती बहन आ जाओ, समीक्षा बहन उसके बाद आ जाए, आ जाए, अनु, अनु जी के बाद रमेश भाई, रमेश भाई, समीक्षा, समीक्षा बहन के बाद समीक्षा बहन आओ, अनु, अनु भाई बहन जो भी अनु है इसमें, जयती के बाद समीक्षा, समीक्षा बहन ने ले लिया, अनु, अनु के बाद रमेश भाई, उसके बाद रमेश भाई, डॉक्टर अर्चना, एक बीके अर्चना थी और एक डॉक्टर अर्चना थी, तो अभी डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर अर्चना, ये केयरिंग हैंड्स का हो गया। नाउ द नेक्स्ट, नहीं पवित्र भाई का, अच्छा यहां लिस्ट में नहीं है नाम। ब्लिसफुल हैंड्स, ब्लिसफुल हैंड्स वाले सभी खड़े हो जाएंगे उसमें। ब्लिसफुल माइंड, मीनाक्षी, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी बहन, जैसे जैसे बोलते जाएंगे। मीनाक्षी, श्यामलाल आए पहले, मीनाक्षी श्यामलाल, उसके बाद भाविक जी आ जाइए, आ जाइए। तीसरा भाविक, मीनाक्षी बहन आ गए, मीनाक्षी बहन आ जाओ। मीनाक्षी बहन के बाद भाविक जी, भाविक जी के बाद विकास, भाविक जी के बाद विकास, विकास जी के बाद शुभा जोशी, शुभा जोशी के बाद बीके अरविंद माथुर, बीके अरविंद माथुर, शुभा जोशी जी, शुभा जोशी जी से पहले विकास भाई ले रहे हैं, अभी शुभा जोशी जी ले रहे हैं। उसके बाद बीके अरविंद माथुर, बीके अरविंद माथुर के बाद अजीत कुमार साहू, अजीत कुमार साहू जी के बाद प्रजापति प्रदीप कुमार, आ जाए, आ जाए। अजीत भाई, अजीत भाई के बाद प्रजापति प्रदीप कुमार, उसके बाद बीके तनुजा, बीके तनुजा के बाद बीके फाल्गुनी जी, बीके फाल्गुनी दीदी ओआरसी, उसके बाद रचना बहन, तनुजा बहन के बाद फाल्गुनी दीदी प्लीज आ जाए। फाल्गुनी दीदी के बाद रचना आहूजा, रचना आहूजा जी के बाद मायरा, रचना जी के बाद मायरा, और मायरा जी के बाद दीपक जी, दीपक, दीपक भाई कहाँ है? दीपक जी नहीं दिख रहे यहां पे, दीपक जी नहीं है, दीपक ये वाले नहीं भाई, दीपक ये वाले, दीपक विश्वास, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप, नाउ द नेक्स्ट वन इज हैप्पी हार्ट्स। उसमें भजनीश, भजनीश कहाँ है? भजनीश आइए भाई सिस्टर। उसके बाद बीके दिव्या, बीके दिव्या, बीके दिव्या नहीं है, बीके आदित्य, बीके आदित्य रंजन गिरी, बीके आदित्य रंजन गिरी जी आ जाएं। आजाद सिंह, आजाद जी आ जाइए प्लीज। आजाद भाई, कमल भाई, आजाद भी हो गए, कमल भाई, कमल भगत जी। उसके बाद रूपाली मिश्रा जी, हेमू जोशी जी, रश्मिता पांडे, रश्मिता पांडे, रूपाली मिश्रा जी आइए, आइए। रूपाली जी के बाद हेमू जी, हेमू जी कहाँ है? हेमू, अच्छा, हेमू जी के बाद रश्मिता पांडे, रश्मिता पांडे जी के बाद सिमरन, सिमरन जी के बाद नीलम, नीलम जी, नीलम जी के बाद हमारी निधि बहन, निधि बहन है, निधि बहन, निधि बहन के बाद बीके शिवी, शिवी का है, शिव बाबा की शिवी आ जाओ। चौथा ग्रुप दिव्या बहन, चौथे ग्रुप की स्लिप, चौथा नीलम बहन का हो गया,
नीलम बहन के बाद निधि बहन, निधि बहन के बाद बीके शिवी। ताली तो बजाइए, आप सबको मिल रहे सर्टिफिकेट्स, आपको भी मिल चुके हैं ना, अब तो ताली बजाओ अच्छे से। वेरी गुड। अच्छा, अब हमारे डिवाइन इनसाइट्स ग्रुप सारे खड़े हो जाओ, फटाफट आ जाओ। उसमें सबसे पहले राहुल भाई, राहुल गर्ग भाई आ जाओ। राहुल गर्ग भाई के बाद सोनू जसपाल सिंह, सोनू जसपाल सिंह, सोनू जसपाल सिंह, साय अमृत, साय अमृत, साय अमृत के बाद अनु, अनु बहन आ जाओ, अनु बहन जल्दी जल्दी आओ। अनु बहन के बाद जयश्री बहन, अंजू बहन, अंजू बहन के बाद जयश्री बहन, जयश्री, जयश्री बहन के बाद अर्चना बहन, अर्चना बहन आ जाओ। अर्चना के, अर्चना के, अर्चना के बाद हमारी गुरप्रीत बहन, गुरप्रीत कौर बहन ओआरसी, निकिता अग्रवाल बहन ओआरसी, गुरप्रीत बहन, निकिता बहन, ये क्या, शिव शंकरी, शिव शंकरी बहन, ये शिव शंकरी, शिव शंकरी बहन के लिए ताली बजाएं। शिव शंकरी बहन ग्वालियर से पहुंचे हैं। उसके बाद हमारी संगीता बहन, संगीता बहन आ जाओ। संगीता बहन के बाद हमारे राजू भाई वेस्ट बंगाल, राजू भाई वेस्ट बंगाल, और हमारे विकास भाई का रहेगा। विकास भाई आप आ जाओ, एक ले लीजिए, आइए हमारे विकास भाई। हाँ विकास भाई, अभी सभी बैठेंगे। हमारे बीच में सचिन भाई हमसे मिलेंगे और हमारे अशोक मेहता भाई भी हमको, दीदी तो अपनी ब्लेसिंग्स देके गए हैं, लेकिन आगे के लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन कहें, इंस्पिरेशंस कहें, वो हमें अशोक मेहता भाई भी देंगे। तो पहले हम सचिन भाई से कहेंगे, आप सभी सचिन भाई के ग्रुप में कौन कौन थे, हाथ हिलाएं। हाँ, तो सचिन भाई हमारे जो प्रोग्राम है उसका ओवरव्यू ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम आप बताने जा रहे हैं। आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं मेडिकल विंग के और एसोसिएट कोऑर्डिनेटर हैं विहासा के। तो हम आपसे चाहेंगे आप ओवरव्यू ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे मध्य रखें। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। 1:30 हुआ है और हम मुंबई वाले बहुत टाइम कॉन्शियस होते हैं क्योंकि हमारा ट्रेन छूटता है सेकंड में। तो मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा कि विहासा ट्रेनिंग प्रोग्राम अब तक आप सोचो सर ने और हमने मिलके 18 साल से कर रहे हैं। बहुत लोग विहासा करते समय एकदम चार्ज हो जाते हैं, जैसे आप लोगों को हमने देखा बहुत चार्ज हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन आगे क्या होता होगा? यहाँ से जाने के बाद में पूरा खेल है कि आप अपना मोटिवेशन को कितना लंबे समय तक बनाए रखते हो, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, है ना? और सभी लोग वो मोटिवेशन को न बनाए रखने के कारण दे डू नॉट बिकम रेगुलर फैसिलिटेटर्स। तो मैं तो पहले तो जानना चाहूंगा आप में से कौन कौन समझते हैं कि हम फैसिलिटेट कर सकते हैं? जरा हाथ करो, खड़ा करो, कर सकते हैं। जरा कैमरा घुमाना इनके ऊपर, रखो रखो, है ना, क्योंकि ये क्लिप आपको घर पे भेजी जाएगी। ठीक है, तालियां बजाओ अपने लिए, काफी लोग हैं। अभी नेक्स्ट प्रश्न आता है, आप कैसे अपने को एंगेज करेंगे, है ना? तो हमारा भी कुछ प्लान है इसके लिए। रीजनल हमारे फैसिलिटेटर्स है, बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं पूरे भारत में। तो दिल्ली को बनाने का लक्ष्य ये था कि ब्रह्मा कुमारीज के बहुत सारे रिट्रीट सेंटर है, जैसे हैदराबाद में है शांति सरोवर, बहुत जगह पे हमने किया है, रायपुर किया है, इवन हम लोग आगरतला गए, गुवाहाटी गए हैं,
महाराष्ट्र, इंदौर किया है, बहुत जगह पे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है, आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते इसका, और अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। आपके सामने क्लासिकल एग्जाम्पल है डॉक्टर मनोज भाई। आप देखो, मुंबई में हम वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं, ये सुबह वहां से निकल रहे, गाड़ी लेके आ रहे सबको, और हमने इनके अंदर मोटिवेशन देखा, और आज देखो पूरे भारत में विहासा कराने के निमित्त है। पर ये आपको अंदर से आना चाहिए, आपका उतना कमिटमेंट होना चाहिए। तो जो कमिटमेंट रखते हैं ना, तो उनको मदद मिलती है, मैंने देखा है। अभी हमारे नीलेश भाई भी है, ही इज जनरल मैनेजर जीएम इन रिलायंस। जरा खड़े होके साक्षात्कार कराओ, तालियां बजाओ इनके लिए। अभी ये बड़ी पोस्ट है, छुट्टी मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है ना, उसके बावजूद भी इनको कैसे छुट्टी मिलती है? क्योंकि लगन है ना, और प्रायोरिटी होती है, तो बाबा की मदद मिलती है। तो वो समय निकाल के आ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट होगी तो आप कुछ कर पाएंगे। फिर बाबा ने इनके द्वारा बहुत सेवा कराए। तो ऐसे ही हमारा टारगेट है कि हम अच्छे विहासा की टीम बनाए, है ना। तो हमारी बहनें तो है ना। और अभी दीदी ने जो कहा मुझे एकदम रैशनल लगा कि कोई इंस्टीट्यूट को चालू करना बहुत इजी होता है, मेंटेन करना टफ होता है, ठीक है ना। कोई भी नया चैनल जब चालू करते हैं टीवी का, आपको पता है कितने एपिसोड पहले से तैयार करने पड़ते हैं? एनी आइडिया कितने समय के एपिसोड? हाँ, मना मैं चैनल चालू कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, पर चैनल में दिखाएंगे क्या? वो मटेरियल भी चाहिए ना, उतने प्रोग्राम चाहिए आपको। ऐसे ही चैनल नहीं खोल सकते। तो इंस्टीट्यूट खोलना इजी है। अभी बहनों ने कितना मेहनत किया पता है? वो दिव्या बहन के कहाँ गई वो दिव्या बहन, ये सुनैना बहन, यशु बहन, और भी होंगे मुझे पता नहीं। कितना लोगों को कब से बता रहे, फ्लायर भेज रहे। रजिस्ट्रेशन कितना हुआ? 235। आए कितने? है ना, 70-80 आए। वो भी पहले दिन पे आए, उनको ही हमने सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि दूसरे दिन वाले फिर किया नहीं ना अपने पूरा। तो ये है रिजल्ट, माना इतना मेहनत करने के बाद इतने लोग पहुंच पाते हैं। तो हम तो तैयार है। जैसे हमारे ग्रुप में हेमू जी ने जो सुनाया, अभी वो कंसल्टेंट है और वो सब जगह जाते हैं। उन्होंने कहा मैं सब जगह करा सकता हूँ। मैंने कहा जरूर कराओ, हमको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छी तरह से कराओ। आप मदद ले सकते हैं और हम आपको लेंगे। इस तरह से आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। देखो, जहां पे पैशन होता है ना, यू अंडरस्टैंड द वर्ड पैशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैशन? जिसके लिए आप मरने को तैयार है ना, वो पैशन है। पैशन के लिए मरने के लिए तैयार होना चाहिए। किलर इंस्टिंक्ट हम कहते हैं। तो मैंने मनोज में वो किलर इंस्टिंक्ट देखा। मैं भी वैसा ही हूं। तो पर बाबा की मदद देखो कैसे मिलती है। पुणे में 3 MOU हमारे साइन हुए यूनिवर्सिटी फॉर विहासा। वी हैव साइन 3 MOUs विद द यूनिवर्सिटी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी हमने साइन तो कर दिया, अभी हम फैसिलिटेटर ढूंढ रहे हैं, कौन जाएगा उधर। वी हैव 4 फैसिलिटेटर्स। पर पुणे तो एक है, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहते हैं पुणे को। लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आर देयर। पर दिल्ली भी कम नहीं है मेरे हिसाब से। यस और नो? तो दिल्ली में भी ये हो सकता है। तो हमारा प्लान है कि दिल्ली में काफी लोग, दिल्ली से कितने हैं जरा हाथ खड़ा करो। सी दिल्ली में मैक्सिमम इज फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली में ये हो सकता है। सिर्फ आपको चिप इन करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन अच्छा करना पड़ेगा, एंड दे नीड इट। अभी मेरा JNU में सेशन हुआ उस दिन। JNU पता है ना आपको, पेपर में आता रहता है। JNU में उस दिन भी हुआ, उस दिन भी स्ट्राइक था सैलरी के ऊपर से कुछ। मैंने कहा यहाँ एटमॉस्फेयर ही ऐसा होगा। तो वहां पे स्टूडेंट, माना PhD ज्यादा है, पोस्ट ग्रेजुएट, वहां पे मैंने विहासा बताया।
अभी वो लोग तैयार है वियासा के लिए। सो ऐसे आप अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है ना, यू विल गेट चांस। तो मैं चाहता हूं कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन तैयार हो, है ना। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो आपको फिजिकली फॉलो अप करें, एवरी क्वार्टरली हम एक सेशन रखें जो दिल्ली वाले यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से इधर आना भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, ट्रैफिक होता है ना। तो दिल्ली वाले बताओ, अगर 3 महीने में एक संडे सैटरडे संडे रखे तो कौन कौन आ सकते हैं सैटरडे संडे? कैमरा प्लीज। हाँ हाँ, देखो इतने लोग हैं, काउंट करो कितने हैं। 2 ग्रुप होंगे या 1 ग्रुप होगा? एक ग्रुप हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ तो ठीक है बना, अगर इसमें 10 और ऐड हो जाए, पहले भी हमारे है यहाँ पे, पहले भी ट्रेनिंग हुआ है। तो सैटरडे संडे अगर आप इंटरेस्टेड है, कमिटेड है, क्योंकि टाइम लगता है इसमें, एनर्जी लगती है। बहनों ने फाइल बिल तैयार किया, इजी नहीं है। आपके खाने की तैयारी, रहने की तैयारी, सब देखना पड़ता है। तो आप अगर कमिटेड है तो हम क्वार्टरली यहाँ रख सकते हैं, है ना। दैट कैन बी स्ट्रीमलाइन। सो दिस इज वन ऑप्शन, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, साल में 2 बार। आपको क्वार्टर चाहिए, माना क्वार्टरली चाहिए? सॉरी, मैं एडिक्शन वाला हूं ना, तो वो निकल जाता है। क्वार्टरली चाहिए, माना हर 3 महीने में चाहिए। ठीक है, हाँ, रहने के लिए क्वार्टर, है ना। ये वियासा वालों का है, आप वो मत समझना। तो ये हो सकता है ना। हम इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, एक ग्रुप बना के आपको उसमें दे जाए। दूसरा, जब प्यासा कुएं के पास नहीं आता है तो हाँ, तो हमको दिल्ली में आप हमको बताएंगे कि दिल्ली में कहाँ पे प्रोग्राम हो सकता है ना। आप हमको इनपुट दो, हमारी टीम रेडी है, क्या करना है वो प्रेजेंट करेंगे। और आपको अगर हम बुलाते हैं वर्कशॉप के लिए, तो कौन कौन ज्वाइन होना चाहेगा करने के लिए, साथ में करने के लिए? अच्छा, ओ इतने लोग कर सकते हैं? लाहौल बिल्ला कुव्वत ऐसे कुछ बोलते हैं उर्दू में, मुझे नहीं पता। तो ये बहुत अच्छी बात है, इतने लोग देते हैं, अभी इसको कम नहीं होने देना। तो एक यहाँ, आप में से कौन कौन है जो आउटसाइड दिल्ली आ सकते हैं? आसपास ऑब्वियसली हमको, हाँ अच्छा, ये आ सकते हैं आउटसाइड। आप लिस्ट बताना अपना, है ना। क्योंकि अभी जो अर्चना बेन आई ना, जिन्होंने शेयर किया, तुमकुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है तुमकुर। मैं वो पूरा घूम चुका है। वहां पे एक सिद्धगंगा मठ करके, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड सिद्धगंगा मठ। उनके जो स्वामी थे, उनकी उम्र, जब मैं मिला तब उनकी उम्र 107 साल थी, 107। और उन्होंने मुझे पूछा, ये तुम इतना घूमते हो, कुछ होता है क्या? He asked me point blank question, तुम इतना घूमते हो, भाषण करते, लोग बदलते हैं क्या? तो मैंने भी बोला, वो मेरा काम नहीं, मेरा काम है संदेश देना, बदले ना बदले उनके ऊपर है। और उनको भी देखा, ये सीधा बोलता है। तो वो क्या करते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं पहाड़ के नीचे। तो 3000 बच्चे ऐसे बैठे थे जिनको वो श्लोक मंत्र पठन करा रहे हैं। बोला, इनको संदेश दो आपका। सो आई गेव द मैसेज ऑफ बाबा 3000 बच्चों को। सो तुमकुर में इनका बहुत बड़ा हैंड। और आपकी जानकारी के लिए, हमारे कौन भाई है जो सेक्रेटरी है अपने अपने एजुकेशन विंग के, मृत्युंजय भाई, उनको ऑफर था ये संस्था संभालने का, वो उधर से। तो मैं ये कह रहा हूँ, तुमकुर में बहुत मेडिकल कॉलेज है, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट, और वहां पे विहासा हुआ है। तो ऐसे ना हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। अभी कौन आया है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए? कहाँ? मध्य प्रदेश से कौन आया है? मध्य प्रदेश, ग्वालियर। ग्वालियर में तो ऑलरेडी हमारी टीम है, आप करो। धुलिया से एक व्यक्ति आए थे, 1 2 है। धुलिया में तो हम करके आए हैं,
कॉन्फ्रेंस, वहां पे बहुत पोटेंशियल है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको कह रहा हूं, पहला तो मेडिकल कॉलेज में होगा, लेकिन विहासा सबके लिए है। मैंने 5 स्टार होटल में कराया, अभी उनका कल ही फोन था, हमको और चाहिए विहासा। 5 स्टार होटल वाले हमको विहासा के लिए बुलाए, JW मैरियट हमारे मुंबई में है। तो आप सोचो विहासा का पोटेंशियल कितना है। IIT खड़गपुर वाले कौन है, जरा हाथ खड़ा करो। खड़गपुर बंगाल, इनके यहाँ IIT है। IIT में भी इसका एंट्री हो सकता है। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एनी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे विहासा का बहुत। अब 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसके बीच में, हमारे ग्रुप में थे दोनों, हाथ खड़ा करो। ये दोनों CA है, तो दे आर बोथ आर रेडीमेड फैसिलिटेटर्स, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ चलते हैं। तो ये बहुत अच्छे फैसिलिटेटर हमारे ग्रुप में बहुत सारे मैंने देखा कि अच्छा करा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इसको आप आगे बढ़ाएं, है ना। MOU साइन करना है यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस या ऑर्गेनाइजेशन में। सर अभी जैसे अजीत सर है, ये पहले रायबरेली में थे, ऐसे बताए, जॉइंट डायरेक्टर थे वो फैशन इंस्टीट्यूट के, बराबर है। तो वहां पर भी अभी मैं जा रहा हूं, तो रायबरेली में भी ये हो सकता है ना। ऐसे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप चालू करो। तो मुझे लगता है थोड़ा सिस्टमेटिकली प्लानिंग करके करेंगे तभी ये नेशनल इंस्टीट्यूट का आगे जा सकता है, बराबर है। ओके, तो आप देखना आप इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हम आपसे सजेशंस भी चाहेंगे। समय कम है इसलिए हम इसमें ज्यादा नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे स्पीकर समय लेने के बाद ये वाक्य बोलते हैं, बहुत टाइम लेने के बाद लास्ट में बोलने का। वैसे तो मैं ज्यादा बोलना चाहता था, लेकिन समय कम है इसलिए मैं रुक रहा हूँ, इसलिए मैं भी यहाँ पे रुक रहा हूँ। नहीं तो सर हमारे बाजू में बैठे, उनके पहले मुझे माइक दिया गया। मैंने इनकी विशेषता देखी, डॉक्टर अशोक मेहता, बाबा ने इनको निमित्त बनाया नई नई बातों के लिए। तो बाबा इनके बुद्धि को टच कराता है, बहुत सही। मेरा तो एक प्लान था कि विहासा रैली निकालने का भारत, मैं रैली मास्टर हूँ, तो मैं सोचा गाड़ी लेके निकालने का, गाड़ी को ही लिखने का विहासा रैली, और वो विहासा रैली पूरे भारत में घूमती रही टीम हमारे 4 जोन में। पर फिर बोला ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरा वो प्लान था विहासा रैली, और दूसरा मेरा प्लान ये था जो मैं नहीं बना रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। मैं बता देती हूँ, वो बहुत सुंदर है, पता नहीं शायद मैं ठीक समझ पाई हूँ या नहीं। विहासा भट्टी हमारी बहुत अच्छी, जैसे ट्रेन द ट्रेनर्स होता है, ऐसे भट्टी मतलब अच्छे से मेडिटेशन करना, बहुत लंबे समय तक मेडिटेशन करना, 2-2 4-4 घंटे तक करते हैं। तो विहासा भट्टी मतलब उसमें कुछ कुछ मॉड्यूल्स को प्रपोज करें, ऐसा कल निकल के आया था विहासा भट्टी। तो लास्ट, क्योंकि समय भी देख रहे हैं हम और लंच का भी टाइम हो रहा है, लंच भी हमें याद कर रहा है, हम भी उसको याद कर रहे हैं, तो हम सभी जाएंगे। लेकिन उससे पूर्व अशोक मेहता भाई हमारे मध्य बैठे हैं, आपसे इनॉग्रेशन के दिन भी मिले और वैसे भी मिलते रहे बीच बीच में। आज मॉर्निंग में भी बहुत सुंदर क्लास कराने आप गुड़गांव गए थे, वहाँ से आप आए हैं, तो आप भी हमें अपनी इंस्पिरेशंस देंगे कि हम इसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, उस एक्सपीरियंस से आप 2 मिनट हमारे मध्य आप इंस्पिरेशंस अपने देंगे, और फिर उसके बाद हम सभी परमात्मा को याद करेंगे और फिर भोजन पे जाएंगे। और जो भी सर्टिफिकेट जिनको करेक्शंस करवाने हैं या और सर्टिफिकेट किसी का रह गया है, तो वो आप सुनैना दीदी आगे बैठे हैं, उनसे आप ले सकते हैं। साथ में हमारी एक इम्पॉर्टेंट है कि फीडबैक फॉर्म हमने सभी को दिए थे, सभी फैसिलिटेटर्स को दिए थे ताकि वो ग्रुप्स में दे दें। तो जिनको नहीं मिले हैं या जिनको मिल गए हैं, नहीं मिले हैं तो भी और मिल गए हैं तो भी, आप प्रियंका बहन को, जिन्होंने भर दिया वो प्रियंका बहन को दे दें, और जिन्होंने नहीं भरा है वो प्रियंका बहन से लेके उसको भर दें। पर अशोक मेहता भाई जी के बोलने के बाद हम ये सब काम यहाँ पे करेंगे। ओम शांति। सचिन भाई ने जो बताया बहुत बहुत पॉजिटिव बताया कि हमें विहासा को कैसे आगे बढ़ाना है।
मैं आपको कुछ ऐसी बातें करने चाहता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है ब्यासा करने के लिए। जब भी आप कहीं भी ब्यासा का प्रोग्राम अरेंज करना है तो यू हैव टू गो इनटू द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स। अब आप जो देख रहे हैं ORC के अंदर सब तैयार है, हॉल्स है, चेयर्स है, क्लटरिंग नहीं है, ऑडियो विजुअल्स है, बहने है, लंच डिनर और टी के लिए आपको कोई तैयारी नहीं करनी। आपको जो कटिंग्स करते हैं, जूने मैगजीन्स, कैंची, स्टिकर्स, फेल्ट पेन्स, रबर्स, ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। इन अदर वर्ड्स इतना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना चाहिए। आप कहीं भी जाके ब्यासा कराना चाहते हैं तो उसके अंदर पहले तो आपको वो इंस्टीट्यूशन में जाना है, इंस्पेक्ट करना है जगह है कि नहीं, क्योंकि नहीं तो आपको सब एक जगह देंगे जिसमें क्लासरूम होएगा, उसमें आप नहीं करा सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप माइन्यूट डिटेल में जाएं। छोटी छोटी बातों की अगत्य ज़्यादा होती है। जैसे फ्लिप चार्ट्स है, आपके पास फ्लिप चार्ट नहीं तो आप कई एक्सरसाइज नहीं करा सकते हैं। आपके पास नीचे बैठ के काम करने के लिए जगह नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अनक्लटर्ड स्पेस चाहिए, मेरा खुली जगह चाहिए और सफिशिएंट इनफ कि जहाँ 15-20 लोग बैठ सकें और घूम सकें। या कई एक्सरसाइज ऐसे जब हम कसरत करानी है, एक्सरसाइज करानी है तो थोड़ी जगह भी चाहिए, ऑडियो विजुअल भी चाहिए। आपको ये बहुत ज़रूरी है कि सब चीज़ याद नहीं रहती है। इतने हमारे जो 8 मॉड्यूल्स है, ईच मॉड्यूल के अंदर 8-10 एक्सरसाइज है। आप कितना भी करेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे करना, उसकी डिटेल्स में कैसे जाना, उसका ऑडियो विजुअल हम आपको शेयर कर सकते हैं हमारे पास जो है। तो आप उसको यूज इट एज अ क्रच। कुछ न कुछ अपने को चलने को सीखना है तो क्रच चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ आपको ख्याल में रखना है। सो एंथुसियाज्म ऑफ कोर्स हैज़ टू बी देयर कि हमको कुछ करना है, लेकिन उसी के लिए मैंने सोचा आपसे शेयर करूं कि हम कई जगह पे जाते थे। मेडिकल कॉलेज में क्लासरूम में जो फिक्स चेयर्स होती है उसके अंदर ये नहीं हो सकता है। उनको लिए फिर क्या है, वी कट कॉर्नर्स। तो उसमें आपका जो उसका एम्फेसिस है कि किस तरह से आपस में मिलें, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिफ्लेक्शंस, वर्किंग टुगेदर, वो उसमें शायद मिस हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट जानना चाहिए। कम से कम 3 से 4 कमरे होने चाहिए, डाइनिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, अच्छे टॉयलेट्स होने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है। आप सारे दिन 8 घंटा बैठते हैं तो ये वॉशरूम भी क्लीन चाहिए। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इसके बारे में आप ज़रूर सोचें। कहीं भी प्रोग्राम करने को आप कोई बुला ले तो उसके पहले आप जाके उसको इंस्पेक्ट करें, उसको लिस्ट दे दीजिए, भाई साहब हमें वो लिस्ट क्रिएट करनी है और सबको देना है कि किस तरह से प्रोग्राम हो सकता है। ये तो जो इंस्टीट्यूशन की बात की, तो इसके लिए ORC के अंदर सब फैसिलिटीज़ बिल्ट इन है। दिस इज़ $1 बिलियन प्लेस, ऐसी जगह आप बना नहीं सकते। और ये हमारी जो बहनें हैं, आप दिव्या बहन, सुनैना बहन, यशु बहन जो देखते हैं, और उनके सपोर्ट में इतने हमारे भाई हैं, तो ये सब हम क्रिएट नहीं कर सकते हर जगह पे। आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा यदि आपको इंडिपेंडेंटली कहीं इंस्टीट्यूशन में जाके करना है तो उसके लिए आपको 2-3 विजिट करनी पड़ेगी, उनके साथ पेशेंस से बातें करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ समझाना पड़ेगा। क्योंकि उनको तो ऐसा है कि भाई हम जाके कुछ जैसे लेक्चर करते हैं वैसे ये वैल्यूज़ कर सकते हैं। आप लेक्चर कर सकते हैं, वैल्यूज़ नहीं कर सकते, ब्यासा नहीं कर सकते। लेक्चर देना बहुत इजी है, आप जाके पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन करके निकल जाओ। लेकिन जब ब्यासा करना है तो सारा दिन वहाँ रहना है, 8 घंटा, और वो 8 घंटा में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एप्रिसिएशन, कैसे हारमोनियस कॉन्फिडेंशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ जब मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया फर्स्ट टाइम, तब तक मुझे फैसिलिटेशन के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर आई वाज लुकिंग एट हिस्ट्री,
मैंने कुछ गूगल किया कि हिस्ट्री ऑफ फैसिलिटेशन, तो उसमें तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बिफोर ऑल्सो पीपल यूज्ड टू डू फैसिलिटेशन, ऐसा आता है। लेकिन हम हमारे दृष्टि से देखें तो हमको ये करीब 20 साल से इंट्रोडक्शन हुआ है, लेकिन उसके पहले मैनेजमेंट वाले ये फैसिलिटेशन ज़्यादा करते हैं, और फैसिलिटेशन करने की भी आर्ट है। हमने जो सीखा है वो बेसिक सीखा है, प्राइमरी। एज यू ग्रो probably there is a national and international group of coordinators. हमारी एक पुणे में एक बहन है, अर्चना बहन उसका नाम है, वो भी बीके बहन है, मैनेजमेंट की एक्सपर्ट है, और वो इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ फैसिलिटेटर्स पर है। तो वो भी राजी होती है कि आपको कभी इनवाइट करें तो आपको इंटरनेशनल लेवल का फैसिलिटेशन क्या होता है वो बता सकती है। लेकिन इवोल्यूशन है, आपने जो किया ये बेसिक लेवल है, प्राइमरी स्कूल में आए, अब जाके ऊपर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड और फिर ग्रेजुएशन तक पहुंचना है। तो मैं समझता हूँ आप सबका उमंग उत्साह देख के ये ज़रूर पॉसिबल है। और ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट की बात की ऑफ वैल्यूज़, ये शायद दिस इज़ द बेस्ट प्लेस बिकॉज दिस इज़ अ शो पीस। यहाँ जो हम करेंगे उसी प्रकार का करना और जगह पे चाहेंगे। तो एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ से मैसेज जाए। जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था ग्लोबल रिट्रीट सेंटर ऑक्सफोर्ड में देखा, वो भी ऐसे ही कुछ सुंदर जगह है। और उसी प्रकार से हम बम्बई में जो करते थे, जहाँ हमारे सचिन भाई और मनोज भाई आए थे, वो रेमी रिलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उसमें करते थे। तो मैं समझता हूँ ये हमारी ये जगह भी ऐसी है, और शहर में हो सकता है जगह जगह पे ऐसी है क्लब्स हो जहाँ आप कर सकते हैं। तो यू मस्ट आइडेंटिफाई फ्यू प्लेसेस वेर यू कैन डू इन द सिटी और वेर एवर यू आर। आप चाहे इंदौर में हैं, चाहे ग्वालियर में है, चाहे गुंटूर में है, ऐसी जगह ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, पर आपको जाके देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने पहले जब शुरू किया तो हमारे अस्पताल में हमारे पास ऐसी जगह नहीं थी, तो हम एक स्कूल में गए, तो स्कूल के क्लासरूम में सब मूव करके वहाँ क्रिएट किया, लेकिन दैट कुड नॉट कम अप टू द मार्क। देन वी डिड इट इन अ क्लब। हमारी एक जैसे क्लब्स होती है वैसे क्लब थी, वहाँ हमने, बट दैट इज़ एक्सपेंसिव। फिर हमको रैमी मिला तो हमने रैमी में किया। तो मैं समझता हूँ वन हैज़ टू बाय एक्सपीरियंस एंड बाय गोइंग एंड विजिटिंग प्लेसेस यू विल आइडेंटिफाई। लेकिन ये मैं फोरवार्निंग उसके लिए करता हूँ कि मैंने देखा है, हम फिलीपींस में गए थे, चाइना में गए थे, हर जगह पे इंस्टीट्यूशन अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये प्रोग्राम कई भाषाओं में भाषांतर हुआ है, स्पेनिश में हुआ है, चाइनीज़ में हुआ है और कई भाषाओं में हुआ है। लेकिन जो वर्क है ये जो 450 पेज का, तो आपको एक पुस्तक तो ज़रूर रखना चाहिए आपके पास, समय समय पर उसको देखना चाहिए। शायद मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी है पुस्तक, ऑनलाइन भी है यदि आपको फ्री में चाहिए तो। ये जो बना हुआ है उसकी कीमत है 1500 रुपया शायद, क्योंकि उसका प्रिंटिंग और बहुत सुंदर है। एक कॉपी तो ज़रूर रखनी चाहिए इंस्टीट्यूशन के अंदर, यदि आप कहीं भी करना चाहते हैं तो, क्योंकि फिर उसको फोटोकॉपी भी कर सकते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो करने की कला है वो आपको मास्टर करनी पड़ेगी। स्पेस रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, वैल्यूज़ आप अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो आप सबके लिए बहुत बहुत मुबारकबादी कि आपने ये 2 दिन 3 दिन इसके अंदर स्पेंड किए हैं और ये वर्थवाइल एक्सपीरियंस रहा है। आप स्वयं बदलेंगे, क्योंकि ये बहुत अगत्य का है कि हम खुद बदलें और फिर लोगों को बदलने की कोशिश करें। ओम शांति। थैंक यू सो मच। सोनू भाई 2 मिनट बैठ जाइए, क्योंकि अब हमको आप सबका भी तो थैंक्स करना है। भाई सब का तो थैंक्स किया, आप इतना टाइम से सुन भी रहे हैं, 2.5 दिन से आप भी हमारे साथ हैं। आप अपने लिए तो ताली बजाओ एक बार अच्छे से।
तो थैंक यू अशोक भाई साहब, आप खास इस प्रोग्राम के लिए हमने आपको बोला और आपने तुरंत उसको स्वीकार किया, और आप जैसा दीदी ने बताया 90 एज में भी आप यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, पूरे ही प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे, तो तहे दिल से थैंक यू। और अशोक हमारे डॉक्टर मनोज भाई जो कि फैसिलिटेट भी कर रहे थे, आप बहुत अच्छे खुद भी स्पीकर हैं, अपने बिहासा के बहुत सारे प्रोग्राम सचिन भाई ने मनोज भाई के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बताई भी हैं। तो हम मनोज भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे ऑडियंस कहें, हमारे फैसिलिटेटर्स कहें, या जो भी हमारे ट्रेनर्स कहें यहाँ पर आए हैं, उनका भी हम तहे दिल से थैंक यू करना चाहेंगे। तो मनोज भाई हमारे मध्य हैं, वो आप सभी का थैंक यू करेंगे। थैंक यू ईशू बहन, वोट ऑफ थैंक्स प्रमोट करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए। हमें अब देखो, अभी जैसे ही आपकी ओआरसी की यात्रा शुरू हुई और अब जाओगे तो देखो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, आप मुझे मदद करो। फैसिलिटेशन है, लेक्चर नहीं है, तो वी विल बी रियली इंडेटेड और थैंक यू सबसे। जैसे आते हैं अकोमोडेशन डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, एक्सीलेंट, इसके बिना तो काम होता नहीं है। सब रोटी डिपार्टमेंट कहो, सब्जी डिपार्टमेंट कहो, डाइनिंग कहो, इतने सारे डाइनिंग हॉल्स हैं। साथ साथ जब हम रूम्स में बैठते हैं तो ऑडियो विजुअल होता है, सभी ऑडियो विजुअल के भाई जो हैं। साथ साथ मेडिटेशन रूम्स में जो भी आप आते हो वहाँ वो सब प्रिपरेशन वो चाहिए। सभी बहनें होती हैं जिन्होंने इतना सारा काम किया, इतना मटेरियल लाया है। वो मटेरियल भी जेरोक्स होता है, उसके पेन्स पेपर्स, उसका स्टेशनरी खरीदना, तो वो जिस भी अगर कोई मिस भी हो रहा है तो आप मुझे हेल्प करो। बट सभी डिपार्टमेंट्स को तहे दिल से शुक्रिया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंक्लूडिंग आशा दीदी जिन्होंने हमें ये काफ़ी सारा इन भाई बहनों के द्वारा मौका दिया, और अभी हम आते रहेंगे यहाँ। और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। तो यस, डांसिंग वी फॉरगॉट। हमारा क्लोजर जो है सुनैना दीदी, येशु दीदी, दिव्या बहन, तो हम कहते हैं वो हमारे बिहासा की टीम ही है, बट स्पेशल थैंक्स टू देम। डॉक्टर मेहता की तरफ से स्पेशल थैंक्स। आप बोलो जरा, माइक है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि हम यहाँ आए हैं, 3 दिन से यहाँ रह रहे हैं, है ना, तो हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इट इज़ योर चॉइस, तो इट इज़ टोटली अप टू यू, है ना। बाबा के बच्चे तो सब समझदार है, लेकिन जो बाहर से आए ना, मुझे कुछ लोगों ने पूछा, तो आप वो भी कर सकते हैं, है ना। सहयोग अगर देना चाहे तो दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे और फिर सभी यहाँ पे बैठेंगे। फीडबैक अपना भर के आप सर्टिफिकेट पे जो भी आपको करेक्शंस करानी है या कुछ भी है वो काम करके यहाँ से खाने पे जाएंगे। तो अभी 2 मिनट परमात्मा को भी दिल से, शिव बाबा को हम थैंक यू बोलेंगे। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने